हेलो गुड मॉर्निंग जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि पहले हाफ एन आवर तक तो हमने एलटी ले लिया, तो फिर आज हाफ एन आवर ही हमें स्टडी का वक्त मिलेगा। और आपको एग्जाम में इसी चैप्टर का टेस्ट रहेगा। वो मैंने कल मैसेज तो छोड़ दिया था, लेकिन किसी स्टूडेंट ने रीड किया नहीं किया पता नहीं। આજે ચાલે એટલું જ ને સર એમાં પણ? हाँ अब तक, सिर्फ आज का नहीं, इस चैप्टर में अब तक जितना चले उस तक। और कल सैटरडे है ना? कल सर हॉलीडे है। सैटरडे कल आपको छुट्टी है, ठीक है। सो लेट्स शेयर अ स्क्रीन विथ यू। Yes. Okay, I have shared wide screen with you. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. And now let's disable annotation for you and hide name of annotators. So since yesterday we have derived that energy stored in capacitor, that is U, is equal to 1/2 CV square. Yes or no? And there are so another types of formula also there. If we replace C by Q and V, if we replace V Q के फॉर्म में, V के फॉर्म में, C के फॉर्म में, तो हमें different type of formula मिलती थी. Now one more thing. First of all, whenever I start this theorem, then whenever I start capacitance, then I will explain you that the energy stored in capacitor is in form of electric field and in between two plates. So let's I draw a figure for your better understanding. Suppose this is your one plate is here. Okay, one plate is here, and another plate is here near to it, and one plate is positive. One plate have charge is positively charged, another is negatively charged. So this plate is positively charged, and the remaining plate is negatively charged. Okay, since yesterday we have seen that if the small amount of charges is bringing from negatively to the positively plate, that is delta Q. So we have obtained some work, and that work is stored in capacitor in form of its energy, and that energy is given by U is equal to 1/2 CV square. Now tell me, what is the direction of electric field inside the capacitor plates? कैपेसिटर की दो प्लेट के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी रहेगी? Positive to negative. Positive to negative. So likewise, so let's here draw arrow. So likewise this. Okay, ऐसे डायरेक्शन रहेगी. I am just showing some arrows only, but it is equally distributed on inside. Okay, this is the direction of electric field. Electric field. Now you have one question in your mind, if you think much more, that sir, how it is stored? Here there is a equation U is equal to 1/2 CV square. There is no any electric field. There is no E inside the equation. Then how it is stored? So I am explaining you that energy. Let's use energy डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में हम डिराइव करेंगे, ठीक है? यस और नो? नाउ सी, दिस इज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C is equal to epsilon naught A by D is well known. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, if we want Q,
चलो Q भी चाहिए, Q भी चाहिए, तो Q के लिए हम एंड ऑल्सो नॉन दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, यस और नो? Yes, sir. And sigma is equal to epsilon naught by E. Clear? लिख सकते हैं ना ऐसे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. Now from this equation you can write Q is equal to sigma into A, and let put this value of sigma to here. So we obtain Q is equal to, क्या हो जाएगा बेटा? Epsilon 0 by A E by E. into A. चलो कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. पक्का everyone? Now we want in form of E. Now what should we have to done? Think. थोड़ा कुछ सोचो, अब हमें क्या करना होगा इसी इक्वेशन में, हम क्या करेंगे वो सोचो, थोड़ा कुछ ही चेंज करना है। यदि आप नहीं सोच सकते हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? देखो हमने जो फॉर्मूला अभी लिखा C एंड V, बट V फॉर्म इन फॉर्म ऑफ Q। देखो हमें Q का एक फॉर्मूला मिला है और C का फॉर्मूला लिखा है, तो हम एनर्जी डेंसिटी के लिए लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C, यस और नो? Yes, sir. रख सकते हैं ना ऐसे कि नहीं? Yes, sir. थोड़ा ऊपर लगता हूँ। U is equal to Q square upon 2C. Now see, we have already derived for equation Q. देखो Q के लिए हमने ऑलरेडी इक्वेशन डिराइव कर रखा है, और C के लिए will non. Substituting all this value, है ना? So U, देखो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फिर पूछना मत सर ये कहां से आया। देखो C की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्स्टिट्यूट फॉर Q। अलग से ठीक है? रखता Sir, रहता तुम्हारा है. network में दो. 1 मिनट। ओके, आ गया नेटवर्क? Sir, रखता रहेगी. Okay, there was one disturbance there. No problem. So let's, क्या बनेगा इक्वेशन? Q स्क्वायर यानी कि एप्सिलॉन 0 A बाय E होल स्क्वायर, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. अपॉन 2 C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ऐसा रहेगा, ठीक है? So U is equal to, चलो सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन 0 A, सब कुछ सॉल्व करो, क्या होता है देखो। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये सही है? हेलो, मैंने पिंक कलर का देखो सर्कल किया हो, वो सही है Yes. या फिर मैंने गलत लिखा है? No, sir. हम्म, ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? देखो आपने तो यस बता दिया, लेकिन आई हैव वन डाउट, No, sir. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
तो आप बोलोगे सर सही इक्वेशन क्या है? आपने तो कोई इक्वेशन याद रखे ही नहीं और नोटबुक में तो लिखे नहीं। is equals to sigma upon epsilon 0. यस, सही इक्वेशन से लिख रहा हूं। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन्हीं से सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? E इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट, E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A एज इट इज। चलो ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। चलो, क्यू की जगह मुझे क्या करना होगा? E एप्सिलॉन 0 A होल स्क्वायर। चलो ठीक है। हेलो, Yes, sir. यस सर। इतने याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कोई भी इक्वेशन Yes, थोड़ा सा sir. भी रॉन्ग हो तो बता देना, ठीक है? नाउ सी, E square will be there, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर A स्क्वायर। चलो स्क्वेयरिंग हो गया, एंड डिनोमिनेटर में 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, D तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। चलो ठीक है, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? देखो, एक बार एप्सिलॉन नॉट है, A है, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट है, A है, एक एक टाइम्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इज इक्वल टू E स्क्वायर एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट एक बार बचेगा, A एक बार बचेगा, D एज इट इज बाय 2। ओके, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अब देखो A इंटू डी इट इज व्हाट? A इंटू डी इट इज व्हाट? वॉल्यूम। यस और नो? हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके चलो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। U इज इक्वल टू क्या लिखा था? E स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी बाय 2, बट A इंटू डी इज इक्वल टू वॉल्यूम between टू प्लेट्स। कैपेसिटेंस की दो प्लेट्स है बेटा, इन दोनों के बिटवीन जो भी वॉल्यूम है उसको हम A इंटू डी, बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल दिस डिस्टेंस इज नोन बाय D and the area of this plate is A. So whatever this amount of A into D, पता चला बेटा? Yes or no? यस सर। Sir. A into D. Now suppose if we divide this equation by A into D per volume, so we obtain energy density. Energy density. So U divide by A into D, वॉल्यूम से हमें डिवाइड किया, सो वी ऑब्टेन एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, where U is equal to एनर्जी डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी हो तो मास डिवाइड बाय हम वॉल्यूम करते हैं, है ना? उसी तरह हमने एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया। यस और नो? एंड इज इक्वल टू U बाय A इंटू D।
Remember this equation for future. The similarly equation you will obtain for magnetic field and magnetic charge density. याद रहेगा बेटा कि भूल गए, भूल जाओगे? સર Yes. અને આગળનું પેજ કરો ને સ્ક્રીનશોટ પાડવા. Wait. Yes. સર આની ટાઇટલ તો લખો થિયરી નું તમને लिखा है ખ્યાલ. मैंने, देख यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी. Energy density in capacitor. ડન સર. ओके, चलो इतना याद रहेगा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? चलो तो इसके रिलेटेड कोई सॉन्ग्स वगैरह कुछ है तो देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप शेयरिंग अ बुक. सर सेकंड Sorry. पेज करो एक सॉरी, सेकंड पेज सेकंड पेज तो था ही. चलो फिर से शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर ले लो एक बार. तुरंत ही ले लो स्क्रीनशॉट. क्या लैपटॉप में वाल लाग क्यों लैपटॉप में देर लगती है? उसमें ऐसा विंडोज प्रिंट स्क्रीन एक साथ प्रेस करो तो स्क्रीनशॉट तुरंत मिल जाता है. आपको करूँ सर क्या आपको स्क्रीन सिलेक्ट करे पर निकला नहीं, पूरी के पूरी स्क्रीन का ही ले लो. એવું શું બોલ विंडोज प्रिंट स्क्रीन. स्क्रीन वालों पर हाँ। आपको अच्छा विंडोज की होती है स्क्वायर विंडोज थी और प्रिंट स्क्रीन लिखा होता है. इन दोनों एक साथ प्रेस करो. ओके, सो लेट्स स्टॉपिंग हियर. देखो धीरे अब सम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बुक ओपन करनी पड़ेगी. एक्सरसाइज में जाते हैं, आपको एक्सरसाइज में वैसे देख के तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा सम अप करने वाले हैं. Let's say, is it visible book to you? Yes, sir. यस सर सिर्फ 5 नंबर बाकी છે. नंबर 5. वो तो उसकी थ्योरी मैंने करवाई कहाँ? वो तो थ्योरी करवाने के बाद करवाऊंगा. चलो कुछ दिख रहा है? સર આ તો થઈ ગયો તો 2.8. हो गया? કાલે हाँ। કરાવતો સર કાલ થઈ ગયું ओके, वेरी गुड. चलो टू पॉइंट एट की थ्योरम तो हमने करवाई नहीं है. 2.10 हो गया? ના સર આ ત્રણે બાકી છે. 9 तो बाद में करेंगे, उसकी थ्योरम करने के बाद पहले 10 ले लेते हैं. बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल. 2.10 a 12 picofarad a capacitor is connected
to a 50 volt battery, how much electrostatic energy is stored in the capacitor? 2.10 very simple question. MCQ में आ सकता है, सम में पता नहीं क्यों पूछ लिया. चलो, C is how much? 12 pico, so 12 into 10 raised to minus 12 farad. V 50 volt energy, so we have derived equation U is equal to 1/2 CV square. आपको क्वेश्चन होना चाहिए सर ये इक्वेशन क्यों यूज किया, Q square by 2C, वो क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें जो भी डेटा दिया है उसी डेटा से हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में देखो C and V is given. अदरवाइज देखो अभी हमने जो थ्योरम डिराइव की थी उसमें Q square by 2C हमने यूज किया था, है ना. Q into V वो भी हाफ QV वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि हमें क्या दिया है. चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू. सो 1/2 C 12 into 10 raised to minus 12 into V square 50 into 50, so 2500. चलो 15 6 25 6 150. चलो कितना आ रहा है बताओ तो. 1.5 into 10 raised to minus 8. 1.5 into 10 raised to Minus 8. 8 नहीं आएगा सर 8 है जहाज करी पक्का जा. हाँ एवरीवन. चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, भरोसा रख के. यूनिट क्या मिलेगा? जूल, है ना. एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल. चलो स्क्रीनशॉट तो आपको जरूरी नहीं है कि जरूरी है. चलो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं अब. टन 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 टन. देखा हम लास्ट सम आ गए 2.11. बीच में बाकी है थोड़े कुछ, लेकिन फिलहाल के लिए तो चलो बेटा. व्हाट इज द क्वेश्चन पहले प्रॉपरली रीड करो. 2.11 एक्सरसाइज का. और 1600 पिकोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई. एक कैपेसिटर ने એવું કહ્યું છે કે ચાર્ज इज डन बाय, चलो मैं रफली फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज फर्स्ट कैपेसिटर इज चार्ज, लेकिन मुझे ड्रॉ करना है. चलो यहाँ पे मैं एक बैटरी रख रहा हूँ और यहाँ पे एक की रख रहा हूँ. चलो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर. लेट्स से C1. C1 is equal to 600 पिकोफैराड. ओके, अब बताए कि चार्ज किया जाता है. देखो बैटरी है V, ओके, इसी से चार्ज किया जाता है. सो V इज गिवन हाउ मच पहले कैपेसिटर के लिए. चलो लेट्स से राइट डाउन V1. V1 इज 200 वोल्ट. इट इज देन डिस्कनेक्टेड. चलो પહેલા આ કી આવી રીતે હતી એટલે કનેક્ટેડ હતો, આમ ફરીથી એઝ ઇટ ઇઝ થઈ જાય એટલે ડિસ્કનેક્ટેડ થઈ જશે. Now disconnected from the supply and it is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. હવે એવું કહ્યું છે કે another capacitor, તો another capacitor ચલો અહીંયા છે એની સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. This is the C1 and here another one is C2. એનો મતલબ કે હવે just આ two capacitor joint રહેશે. Yes or no? So C2 is how much? 600 picofarad.
चलो એટલું ક્લિયર यहाँ तक? yes or no? Yes, sir. okay. how much electrostatic energy is lost in this process? इनमें कितनी एनर्जी लॉस्ट होने वाली है वो बताना हमें हमें पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट इनिशियल एनर्जी चाहिए, फिर फाइनल एनर्जी चाहिए। बाद में हम इनिशियल में से फाइनल माइनस करें तो हमें टोटली एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ वो हमें मिलेगा। चलो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू कितना है बेटा? CV square by 2. यस 1/2 CV स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन ये है, देखो C1 V1 is given but V2 is not given, so V2 is 0। अब देखो इन दोनों पैरामीटर में चार्ज रिमेनिंग कांस्टेंट, यस और नो? चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्यू चार्ज। यहाँ पे जो भी चार्ज है वो इसमें चला जाएगा। सो मैं शॉर्टकटली आपको बता रहा हूं, हियर चार्ज रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। सो कॉमन voltage is given by V is equal to C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2। चलो इक्वेशन आपको पढ़ाई में तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये इक्वेशन कहां से आया। मैंने देखो फर्स्ट सेंटेंस में कुछ लिखा हुआ है, इफ यू कैन रीड हियर चार्ज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो पहले जितना चार्ज था तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है? C इंटू V, यस और नो? Yes, sir. तो देखो C इंटू V लेफ्ट हैंड साइड आप राइट हैंड साइड करो तो C1 V1 यानी कि चार्ज, फाइनल कंडीशन में C2 प्लस V2 यानी कि टोटल चार्ज कॉमन रहा, और C1 C2 डिनोमिनेटर में उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो C1 C2 इंटू V। तो उस टाइम पे भी चार्ज तो कितना रहेगा? कांस्टेंट। Constant. यानी कि हमें कॉमन वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। पता चला बेटा? यस और नो? Yes, sir. ओके नाउ सी, अब क्या करेंगे बोलो? V मिल गया हमें, तो हम इनिशियल एनर्जी काउंट करेंगे कि नहीं? हाँ, यस और sir. नो? Yes, sir. ओके चलो इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी लेट्स से U1 इज इक्वल टू 1/2, पहले तो एक ही कैपेसिटर था यानी कि C1 इंटू V स्क्वायर। पहले कनेक्शन में एक ही कैपेसिटर था, है ना, इनिशियल में। तो अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट करो। सो 1/2 C1 कितना है? 600 पिको यानी कि 10⁻⁻12। V कॉमन V कितना मिला हमें? यही से कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। V हमें यही से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर सकते हो कि नहीं? सर हाँ, sir. चलो तो वो तो मैं करना भूल गया, चलो यही पे लिख देता हूँ। V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। आप कंटिन्यूटी लिखना, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए C1 प्लस C2। चलो C1 कितना है? 600। देखो सब कुछ पिको में इसलिए मैं कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में सब कुछ। V1 कितना है? 200 प्लस C2 600 मल्टीप्लाई बाय 0 C1 प्लस C2, सो इतना। चलो कितना हो जाता है देखो, कितना हो जाएगा? 8 हम तो 0 हो गए, 600 मल्टीप्लाई बाय 0
6 2 जा 12, वो भी गेट कैंसिल आउट, 00, so only remaining 100. Yes or no? हेलो, यस यस सर। पता चला ना कहां से आया? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 वोल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ से किया। आप जब लिखना तो तुरंत यहाँ पे ही कैलकुलेशन लिखना है, लेकिन मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। फिर ऐसा मत करना कि चलो सर ने लिखा था तो हमने भी ऐसे ही लिख दिया, एरो भी कर रखा है। चलो अब वैल्यू रख दो यहाँ पे। v की वैल्यू 100 का स्क्वायर, सो 10⁴ 6। चलो कितना हो जाता है? 6 डिवाइड बाय 2, सो 3 into 10⁻⁻6 इंटू 10⁻, देखो 12 है, 12 में से 4 गए तो 8, 8 और 2 એટલે 10⁻⁻6 जूल हमें इनिशियली मिली। ठीक है, इनमें कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो फाइनल एनर्जी U2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो फाइनल कनेक्शन में दो कैपेसिटर है, C1 प्लस C2, है ना। दूसरी बार जब हमने कनेक्टेड किया तो कैपेसिटर कितने हैं हमारे पास? 2, और कॉमन वोल्टेज V², तो क्या हो जाएगा? 1/2 600 into 600, so 1200 into 10⁻12 into 10⁴। कितना हो जाता है देखो? So U2 is equal to कितना होता है बताओ? 6 into 10⁻⁻6 6 into 10⁻⁻6। चलो ठीक है, यूनिट क्या मिलेगा? जूल। जूल। यस सर। सो एनर्जी लॉस कितना होगा? लेट्स से डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2, 3 into 10⁻⁻6 minus 6 into 10⁻⁻6, so minus 3 into 10⁻⁻6 जूल। चलो ठीक है, यस और नो? टेक अ स्क्रीनशॉट। अरे मैं तो तुम्हारी क्या था? वन मिनट। ओके, जो हमारा सम था वो तो कैंसिल आउट हो गया है ना, हमने जो किया था वो चेंज किया हुआ। तो इसमें फाइनल आंसर क्या मिला था हमें? सर 11 मंथ हाँ, U1 इज इक्वल टू क्या मिला था? 12 into 10⁻⁻6 6 जूल। U2 6 into 6 into 10⁻⁻6 जूल, और उनमें से डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2, दैट इज 6 into 10⁻⁻6 जूल। ये जो मिला था, वो जो हमने किया था उसका रिकॉर्डिंग स्टॉप था, तो रिकॉर्डिंग मिला ही नहीं हमें, है ना। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय स्वामीनारायण। बाय सर, जय बाय स्वामीनारायण। सर, जय बाय सर। स्वामीनारायण।